Very good morning, students. This is a continuation part of our previous lecture. Today's topic we are dealing with Britain became a nation state of your chapter number 1, Rise of Nationalism in Europe of your history. And here again I am Poonam Prasad in front of you. Students, in our earlier class we came across with the topic unification of Italy. Now we are going towards with the topic that is how Britain became a nation state. Students, Britain, if we are talking about this as a formation of a nation state, it was not the result as a part of revolution, any sort of revolution, nor any sort of political or sudden upheaval. Student, there was no British nation before the 18th century. Why? Because the monarchy was established over there. The people who belongs to the British Isles, basically they belongs to different language, different ethnic groups like English, Welsh. This is not about the relish, but it is about Welsh. The word is called as Welsh. That is WELSH. Fine. The word is Welsh. Scott are Irish. Fine. So these were basically the regions, or you can say the population were divided into different ethnic groups, right? All of them have their separate control and political traditions. It means that all of them have their own set of administration, their own set of economic and political control. They have their own culture or own traditions. Either if we are talking about English, if we are talking about Welsh, Scottish or Irish, right? Students, among all these groups, the ethnic were able to dominate the other groups. Why? Because they were they were sound in wealth. उनके पास पैसा था. इंग्लिश पीपल के पास, आप लोगों को पता है किस तरीके से इंग्लिश मैन ने तो पूरे विश्व को अपने कब्जे में करके रखा हुआ था. Importance and power. They became, you can say, politically dominance over these group. They became, in the terms of wealth, in the terms of importance and power. English men, or you can say English group, were the dominant group and dominated over the other groups. The step through which England became a nation states were, किस तरीके से जो इंग्लैंड था वो नेशन स्टेट बना. स्टूडेंट्स, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल, इंग्लिश पार्लियामेंट दे सीज्ड पावर फ्रॉम monarchy in the Europe during the period of 1688. Earlier I have told you that monarchy were the dominant group over there. लेकिन काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद इंग्लिश पार्लियामेंट के हाथों विजय पताका यानी कि उनके हाथों में पावर आया. राजा ने ट्रांसफ़र किया देयर पावर. और यही कारण है कि ब्रिटेन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. जो राजा है या रानी है वो वहाँ पे, यानी जो नोबल पर्सन है वो वहाँ पे क्या है बेटा, वो वहाँ पे एज अ नॉमिनल हेड है. और बाकी जो पावर्स है वो किसके हाथों में है, इंग्लिश पार्लियामेंट के हाथों में. द बिल ऑफ राइट. The Bill of Right was signed by the king in the year of 1689 children. इस बिल के हिसाब से जो पावर्स थी वो किसके हाथों में आई बेटा, वो पावर्स आई इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट की रजामंदी, चाहे वो टैक्सेशन इम्पोज करने में हो, चाहे आर्मी के विषय पे कि आर्मी खड़ी होगी ड्यूरिंग द पीस, या आर्मी उस टाइम पीरियड में वो मूव करेगी जिस टाइम पीरियड में अगेंस्ट द पीपल व्हेन नॉट एट द वॉर. फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा कहाँ पे, पार्लियामेंट में. इट मीन्स द फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम फ्रॉम एक्सेसिव बेल एंड फ्रीडम फ्रॉम फाइन without a trial. All these were the
यू कैन से कम अंडर दिस बिल ऑफ राइट, और इसके तहत एग्रीमेंट साइन किया गया, यानी पावर्स जो थी वो पार्लियामेंट को मिली, इंग्लिश पार्लियामेंट को मिली, एंड द पावर्स ट्रांसफर फ्रॉम monarchy to the parliament. Thus, Britain became constitutional monarchy. Fine, students. If this is all about the Bill of Right 1689. When we are talking about the Act of Union, this was quite important, children. हम लोग 2 acts पढ़ेंगे इसमें. First, the Act of Union 1707 and the Act of Union 1801. Let's we talk on the first one. ये जो Act of Union था वो 1707, it was between England and Scotland के बीच में. जैसे मैंने बताया स्कॉटिश, आयरिश, ये सब एथनिक ग्रुप थे, और सबसे डोमिनेट ग्रुप कौन सा था? इंग्लिश. तो इंग्लिश और स्कॉटलैंड के बीच में एक समझौता, विलय समझौता जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें फॉर्मेशन था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसका मतलब दैट इंग्लिश वॉज और इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज देयर विल ऑन स्कॉटलैंड. यानी स्कॉटलैंड पे जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड, वो अपनी इच्छाओं को स्थापित कर सकता है. इम्पोज देयर विल ऑन होम? स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड के अंदर कहीं ना कहीं एक डर था, एक अविश्वास था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम इनके साथ मिल जाते हैं तो हम सिंपली दूसरे रीजन्स की तरह हमें दिया जाएगा महत्व, हमें कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, हमें सिर्फ सिंपली वी बिकेम अनदर रीजन ऑफ इंग्लैंड, है ना. हमारी कोई अपना वजूद या आइडेंटिटी नहीं होगी इस विलय में, यानी इस एक्ट में, क्योंकि ये एक्ट काफ़ी समय से चल रहा था, बट उसको रोका जा रहा था. किसके कारण? कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड के मन में एक शंका थी, एक अविश्वास था. But in the year of 1707, the Scottish Parliament voted to agree to the union between England and Scotland. जो स्कॉटिश पार्लियामेंट था वो एग्री हुआ विलय करने के लिए इंग्लैंड के साथ in the year of 1707. Therefore, this act was called as Act of Union 1707. The Scottish Parliament voted to agree to the union became इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, राइट. स्कॉटिश पार्लियामेंट को अगर वो इंग्लैंड के साथ विलय है और इंग्लैंड डोमिनेट ग्रुप था, तो वहाँ पे स्कॉटिश पार्लियामेंट क्या हुआ? उसको ख़त्म कर दिया गया. इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक कंट्री बना. स्कॉटलैंड ने हालांकि स्वतंत्रता रखी, किन मामलों में? अपने कानूनी कार्रवाई और अपने धर्म के रिलीजियस सिस्टम और लीगल सिस्टम में, लेकिन उनका जो मनी मैटर था, टैक्सेशन था, उनकी जो सोवर्जिनिटी थी, ट्रेड था, फ्लैग था, वो एक हुआ. द फ्लैग वॉज पॉपुलरली नोन एज यूनियन जैक. आप लोगों को पता है, ठीक है बेटा. तो यहाँ पे इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, अल्टीमेटली क्या हुआ? स्कॉटलैंड का इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं किस पे था? वो लीगल और रिलीजियस सिस्टम, लेकिन अल्टीमेटली द कॉइनेज, टैक्सेशन एंड सोवर्जिनिटी वाज अंडर द कंट्रोल, ट्रेड एंड फ्लैग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ, वर अंडर द कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड. सो फ्लैग बना एक, दैट वाज कॉल्ड एज, द फ्लैग बिकेम वन एंड इट वाज कॉल्ड एज यूनियन जैक. चिल्ड्रन, द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, यहाँ पे जो ब्रिटिश आइडेंटिटी था, इसका मतलब था कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था. स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सप्रेस्ड. कैथोलिक क्लैंस दैट इनहिबिटेड द स्कॉटिश आइलैंड्स सफर्ड रिप्रेशन. सबसे ज़्यादा स्कॉटलैंड में जो कैथोलिक जातियाँ थीं उनको सबसे ज़्यादा दबाया गया, क्योंकि दमनकारी नीति को अपनाया गया ब्रिटिश
के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा जब जब ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते थे तब तब उनको दबा दिया जाता था। किनको बेटा? कैथोलिक क्लैंस को, कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड को। द स्कॉटिश हाइलैंड्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस, इवन दो उनको मना ही थी, वो अपनी भाषा को नहीं बोल सकते थे, उनकी भाषा थी गैलिक भाषा, और वो अपनी नेशनल ड्रेस को भी नहीं पहन सकते थे। सो द स्कॉटिश हाइलैंड्स वर forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress. So this was all about the Act of Union 1707. Next we are talking about the Act of Union 1801. Students, जो पहला था दैट वाज, इसमें हमने पॉइंट्स लिया। फर्स्ट वन बिल ऑफ राइट्स, जिसके तहत जो पार्लियामेंट के पास पावर्स जो थी ट्रांसफ़र की गई फ्रॉम मोनार्की टू पार्लियामेंट, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा 1707 एक्ट ऑफ यूनियन, जिसके अंतर्गत स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का विलय हुआ इंग्लैंड में। अब हम बात करेंगे एक्ट ऑफ यूनियन 1801, जिसमें आयरलैंड का विलय होगा किसके साथ? इंग्लैंड के साथ, आयरिश और स्कॉटिश। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। इट वॉज अ कंट्री, बेसिकली जो आयरलैंड थी वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, ये दोनों जो क्लान्स हैं, ये दोनों जो संप्रदाय हैं बेटा, वो किसके संप्रदाय हैं? वो क्रिश्चियनिटी के संप्रदाय हैं। कैथोलिक्स ओल्ड चर्चेस को मानने वाले, और जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कैथोलिक्स के अगेंस्ट में। तो जो इंग्लैंड था वो प्रोटेस्टेंट्स की मदद कर रहा था, इंग्लिश पीपल। क्यों? क्योंकि आयरलैंड जो था वो कैथोलिक डोमिनेंस कंट्री था। तो उस डोमिनेंस को हटा के प्रोटेस्टेंट्स डोमिनेट करे आयरलैंड में, ऐसी इच्छा के साथ इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा था किसको बेटा? इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा था कैथोलिक्स को। इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा था प्रोटेस्टेंट्स को। कैथोलिक्स दे रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस, बट इट वाज सप्रेस्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट led by Wolfe Tony and his United Irishmen. In 1801, the Act of Union was passed by both British and Irish Parliament. Ultimately क्या हुआ? काफ़ी ऑपोजिशन के बाद ब्रिटेन, आयरलैंड को ब्रिटेन में मिला दिया गया, और इस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड वो एक सिंगल किंगडम फॉर्म हुआ। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज फॉर्म्ड विद आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन तो था ही, उसके बाद आयरलैंड के साथ उसमें हुआ। डबलिन पार्लियामेंट थी, वो आयरलैंड की पार्लियामेंट कौन सी थी? डबलिन पार्लियामेंट। उसको डिसॉल्व किया गया, जैसे पहले स्कॉटिश पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया गया, इसमें डबलिन पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया गया। जो एंग्लिकन चर्च था, जो इट वॉज डोमिनेटेड बाय द English people, it was recognized as official church of Ireland. कोई भी कैथोलिक्स थे, they were not allowed to hold public offices. यानी कहीं ना कहीं कैथोलिक्स के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन था, और बेसिकली वो ये चाहते थे कि आयरलैंड किसके साथ मिल जाए? वो इंग्लैंड के साथ मिल जाए। नया ब्रिटेन एक नेशन बना, न्यू ब्रिटेन नेशन came into existence, जिसका सिंबल था न्यू ब्रिटेन वर ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। नेशनल एंथम गॉड सेव्स आवर नोबल किंग। इंग्लिश लैंग्वेज को एक्टिवली प्रमोट किया गया, और जो पुराने नेशन थे दे वर कंसिडर्ड, उनको वो तभी सर्वाइव किए गए जब वो ब्रिटेन के सहयोगी दल कहलाए गए, यानी सहयोगी पार्टनर्स कहलाए गए, सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन, दे वर कंसिडर्ड दैट, देयरफॉर दे सर्वाइव्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट
टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने 2 वीडियोस देखी। पहले वीडियो में हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली और दूसरे में हम लोगों ने देखा किस तरीके से ब्रिटेन का फॉर्मेशन होता है इनटू वन नेशन, जिसमें हमने बिल ऑफ राइट्स, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिसमें हम लोगों ने किस तरीके से स्कॉटलैंड का विलय देखा इंग्लैंड के साथ। फिर 1801 एक्ट ऑफ यूनियन में किस तरीके से आयरलैंड का विलय हुआ, आयरलैंड का विलय हुआ किसके साथ, बेटा इंग्लैंड के साथ। सो अगेन स्टूडेंट्स, वॉच योर वीडियो केयरफुली एंड यू हैव टू गो अहेड with your revision, and only one topic is left, and that is your Balkans. So in tomorrow's class I would like to take your Balkans, right? So till then beta, take care, goodbye.